ہمارا یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ منافقت کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, منافقت کو کال آؤٹ نہیں کیا جاتا, اور جو لوگ منافقت کو کال آؤٹ کرتے ہیں ان کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. ابھی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی, ایک پورا پروگرام کیا فیصل قریشی نے رمضان ٹرانسمیشن میں, جو اور اس کے اوپر خوب رونا دھونا مچایا کہ گستاخی ہو رہی ہے ڈارک ویب پہ, بڑی طرح طرح کی گستاخی ہو رہی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں, اور اس کو ٹیکل کرنے کا کیا سلوشن ہے, لیکن یہ جو رویہ دکھایا جاتا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, پہلے ہم اس کے اوپر فوکس کریں گے. تو پہلے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھا دوں کہ کیا ہو کیا رہا تھا, یہ سنیے ذرا. لگ جائے یہ 2-3 لوگ نہیں ہیں, یہ پاکستان میں کوئی 1-2 ہزار نہیں ہے. ایف آئی اے سائبر کرائم کی رپورٹ کے مطابق جو مجھے آج دکھائی گئی ہے اس کے مطابق ان کی تعداد پاکستان میں 4 لاکھ ہے. 120 لوگ گرفتار ہو چکے, 11 لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ہے. ہم کریں تو کریں کیا, کس دروازے پر دستک دیں؟ ہم یہ سوال کرنا چاہتے, کیا ہم ملک میں جلاؤ گھیراؤ کریں؟ آپ کے ملک میں تو حال یہ ہو گیا ہے کہ داریہ قسم کے لوگ آپ کے ہاں لیکچرز دے رہے, اور یہ کسی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے, اب گھر گھر کی کہانی بن چکی ہے. ایک عالم دین توہین کرتے ہوئے پکڑا گیا. آج انہوں نے مجھے جو رپورٹ دکھائی ہے اس رپورٹ کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ سب اس ملک میں ہو رہا ہے. اے والدین, اپنا حق ادا کرو, بچوں کی نگرانی کرو, اور بچوں کی نگرانی ہم نے اس طرح سے کرنی ہے. اس دن مفتی ابو محمد صاحب نے ایک اپلیکیشن کی طرف اشارہ کیا تھا کہ گھر کے ڈیوائسز سے اس کو منسلک کرو, ماں باپ نگرانی کرے. اس وقت آپ کے ملک کو تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. میں صرف اشارتاً یہ عرض کر رہا ہوں, فیصل قریشی صاحب پرائیویٹ پارٹس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ حضرت سیدہ فاطمہ کا نام لکھا ہوا ہے. اس سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے؟ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہمیں موت کیوں نہیں آ گئی؟ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم 7 اپریل کو پاکستان میں تحفظ ناموس رسالت کا دن منانے جا رہے ہیں. محترم فیصل قریشی صاحب, علماء آگاہی فراہم کرے. اے والدین, رب کعبہ کا واسطہ, قرآن کا واسطہ, اٹھو اور کردار ادا کرو اور اپنے بچوں کو, اپنے ملک کو اور اسلام کو بچاؤ. یہ میرا پیغام ہے, یہ جذباتی ہونا نہیں ہے. یہاں سے بول چینل سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا, اور ہر ایک اس باب میں اپنا کردار ادا کرے. میں چاہوں گا کہ سب کھڑے ہو کر یہ جو ہے وہ اس وقت پیغام دیں تاکہ قوم تک ایک پیغام پہنچے. نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس جس ملک میں محفوظ نہیں, کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. قبلہ, بات کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا جا رہا ہے جس طرح سے اس بات پہ کام کرنا چاہیے. ان کی تو شکلیں لا کے سامنے دکھانی چاہیے, ان خنزیروں کی, ان سب کی ایک ایک کی شکل لا کے دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ جو لوگ ہیں جن کو سزائے موت دی جا رہی ہے, جن کے ساتھ یہ سب کو, ان سب کی شکلیں دکھانی چاہیے تاکہ وہ خاندان کے خاندان پتہ چلیں کہ ان کے خاندان میں یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے. پورے تو یہ وہ صاحب فرما رہے ہیں جن کی پوری زندگی ریوالو کرتی ہے لبرل ورلڈ ویو کے جو پھل ہیں ان سے, ان کے بینیفیشری ہیں یہ موصوف. ڈراموں میں کام کرتے ہیں, فلموں میں کام کرتے ہیں, پوری اپنی زندگی میں بڑی ووک قسم کی. یہ پاکستان میں جو لبرل ہوتے ہیں یہ ان سے بھی آگے والے لبرل ہیں, لیکن دنیا کے سامنے اپنی ساکھ جیجا کروانے کے لیے یہ لوگ فوراً عاشقان رسول بن جاتے ہیں. وہ لیکن یہ بات کتنی خطرناک کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں صرف یہ نہیں کہ جس نے جو جرم کا مرتکب ہوا ہے ان کی شکلیں دکھائیں, بلکہ کہہ رہے ہیں ان کے گھر والوں کے اوپر بھی تاکہ بعد میں آئے. یعنی اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی گستاخ نکل آئی ہے تو ان کے گھر والوں کو بھی لوگ لان تان کریں, ان کو بھی ہراس کریں. اور کیا پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا؟ کیا موب میں لوگ پاگل ہو کے پورے پورے گھر نہیں جلا دیتے؟ پوری پوری بستیاں یہاں پہ انہوں نے جلائی ہوئی ہیں کرسچنوں کی. تو کیا ایسے نہیں ہوتا؟ تو یہ کہہ کون ہے؟ اگر کوئی مولوی کہے, جو اس طرح کے مولوی یہ بٹھائے ہوئے تھے, یہ جو بھی بڑی میلو ڈرامیٹک قسم کی تقریر کر رہا تھا, ڈرامے بازیاں, مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے, یہ کریں تو اوکے, ان کو ٹیکل کرنے کا اور طریقہ ہے. لیکن پاکستان کی یہ واحد ملک ہے پوری دنیا کے کی جو شوبز انڈسٹری ہوتی ہے, جو آرٹسٹ کمیونٹی ہوتی ہے, وہ سافٹ ہوتی ہے. وہ اپنی سافٹ ویلیوز کی وجہ سے پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہے.
इंडिया में अगर हम देखते हैं तो जो उनके बॉलीवुड के लोग हैं वो अपनी माइनॉरिटीज के साथ खड़े होते हैं, वो सॉफ्ट कल्चर की बात करते हैं, हॉलीवुड में सॉफ्ट कल्चर की एक्टर्स बात करते हैं, और जो उनके राइट विंगर जो नट जॉब्स होते हैं वो इस तरह की हार्श वैल्यूज को प्रमोट कर रहे होते हैं जिस तरह। लेकिन पाकिस्तान में काम उल्टा, यहां पर लिबरल अदाकार जो लिबरलिज्म का फायदा उठा के अदाकार बनते हैं, अगर ये जिस तरह की वैल्यूज को ये प्रमोट करना चाह रहे हैं, जायनदन अफगानिस्तान, इनको छितर मारेंगे तालिबान, तो ये मुनाफिकत है। ये खुद बड़ी लिबरल लाइफ गुजारते होंगे अपनी जाती जिंदगी में भी। इनके ड्रामों में खुद सारी उम्र इन्होंने लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, नामहरम औरतों के साथ। हमारे वर्ल्ड व्यू में इसकी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं तो लिबरल हूं, हमारे वर्ल्ड व्यू में इस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मुसलमान बन जाते हैं और बाद में फिर ड्रामा भी करते हैं, बाद में ये कहते भी हैं कि भाई हम तो बड़े गुनहगार लोग हैं लेकिन हम आशिकाने रसूल हैं। ये सिर्फ नंबर बनाने का तरीका है। तो बहरहाल इन्होंने ये इस तरह की एक फजूल किस्म की कमेंट्री की, तो उसके बाद मुझे वैसे बड़ी हैरत हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में अब एक लिबरल क्लास एक ऐसी है जो कि जरूरी नहीं सारे एथियस्ट हो या एक्स मुस्लिम हो। इस वीडियो में भी इन्होंने खैर इस चीज का कहा है कि 4 लाख लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं, मुझे तो बड़ी हैरत हुई। लेकिन एक जो मुसलमान जो है, जो मुसलमानों में भी लिबरल कम्युनिटी एक होती है, वो भी इनकी बड़ी इसके ऊपर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने एक ये ट्वीट वायरल हुई, इस तरह की एक दो और कुछ ट्वीट्स हैं जो बड़ी वायरल हुई, जिसमें उन्होंने कहा ये लें, आप जिन खंजीरों की शक्लें दिखाने की बात कर रहे हैं, ये लें, हम आपको उन खंजीरों की शक्लें दिखा देते हैं। ये हैं उनकी शक्लें, जैसे जुनैद हफीज है, या जैसे आपको याद होगा मशाल खान था, उनकी फैमिली को भी हरास करते रहे लोग, प्रियांथा कुमारा था, और बेतहाशा इस तरह के लोग हैं जिनके ऊपर गुस्ताखी के इल्जाम लगते हैं। अब थोड़ा सा लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट, फैसल कुरैशी साहब कह रहे नहीं नहीं हम मावरा अदालत की बात नहीं कर रहे, ये कल्चर है गुस्ताखी का जो 1980 के बाद जब सजाए मौत इंट्रोड्यूस की गई, 14 केसेस से बढ़ के 1500 केसेस तक बात चली गई। 1986 से पहले सिर्फ 14 केसेस थे, और जब 1986 में सजाए मौत लाई गई तो 1500 केसेस बन गए 2017 तक, और उसके बाद और भी ऐड हो गए होंगे। वो इसलिए क्योंकि जब आप इस कल्चर को प्रमोट करते हैं, जिस तरह के ये मौलवी बात करते हैं, सुनिए ये मौलवी किस तरह की बात करते हैं। सलाम की जाते वाला सिफात पर किसी किस्म का कोई ऐब, कोई नक्स, कोई तंज, कोई तनकीद करें तो शरीयत इस्लामिया ने उनकी सजा मुकर्रर की है कि ऐसे लोग वाजिबुल कत्ल हैं। नबी जैसे ऐसे लोग वाजिबुल कत्ल है, चाहे आप हल्की सी तनकीद भी करें इनके ऊपर। और ये वही आदमी है, ये मौलवी जो बैठा हुआ था यहाँ पे, बड़े ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। टीवी के सामने हम नहीं मावरा अदालत की बात नहीं करते। तो इसकी वीडियो देखें इसी हनीफ कुरैशी की, कि जब जिससे सलमान तासीर का कत्ल किया था मुमताज कादरी ने, ये उसको किस तरह सेलिब्रेट कर रहा है। मेरा उसके साथ खून का रिश्ता है, मैंने कहा खून का रिश्ता नहीं, खानदान का रिश्ता नहीं, कलमे और ईमान का रिश्ता है। और सुन, तुम्हें भी बताता हूं मैं मुमताज कादरी से क्यों प्यार करता हूं। हाँ, एक नहीं 20 लोगों ने मेरे मदीने वाले की जियारत की, किसी ने देखा मुमताज नबी के दरबार में नाच पढ़ रहा है। तो ये इनकी बकवासियात और क्या आपको सुनानी। कहने का मकसद ये है, एक पॉइंट इधर ऐड कर दूं, ये हनीफ कुरैशी जो है ना, ये तो आपने क्लिप जो दिखाया है, ये सलमान तासीर के वाकये के बाद वाला है। मुझे अभी एक और क्लिप मेरी नजर से गुजरा है, उसके कत्ल से पहले वाला, जहां पे ये मिंबर पे बैठ के लोगों को ये तरगीब दे रहा है कि रसूल की गुस्ताखी तो दूर की बात, उनकी जूती की खाक की भी कोई गुस्ताखी करे तो वो भी पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए वो वाजिबुल कत्ल है। ये वो इंसान है जो इस तरह की बातें अपने मेंबर से करके लोगों को बेसिकली, ये खुद क्यों नहीं चला गया हनीफ कुरैशी, खुद क्यों नहीं जाके इसने सलमान तासीर, अगर ये उसको गुस्ताख समझता था, वैसे तो हमारे वर्ल्ड व्यू में ये बिल्कुल फजूल चीज है, लेकिन ये लोग करते क्या हैं कि ये उभारते हैं आम आवाम को, जिसकी वजह से फिर आम आवाम जो है वो जज्बाती होके वो इस तरह का इंतहाई इकदाम और माशरे में शिद्दत पसंदी फैलती है। जी, और ये बात आपने, ये तो वही मैंने जैसे कहा कि जो मौलवी ये हरकत करते हैं तो ठीक है, इनको निमटने के और तरीके, इनको मौलवी एक गाली भी बांध चुकी है। लेकिन जब फैसल कुरैशी साहब जैसे लोग, जब ये लोग जो बेनिफिशियरी हैं लिबरल वर्ल्ड व्यू के, इनलाइटेंड वैल्यूज के, वो इस तरह की बातें करते हैं, वो इस तरह की वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, तो ये मुनाफिकत, और इससे साफ पता चलता है कि ये मुनाफिकत को सेलिब्रेट किया जाता है इस सोसाइटी में। लेकिन मुझे वैसे खुशी हुई कि इनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म आया। ये ट्वीट वायरल हुई अली रजा की, मैं इनको पहले नहीं जानता था,
तो बहुत सारे लोग, ये सारे पाकिस्तानी लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे और कह रहे थे कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, और ड्रामेबाजी इस सेंस में कि इनको इस चीज का एहसास होना चाहिए। हम फिर यही बात कर रहे हैं कि इस चीज का आपको अभी भी नहीं पता चला, प्रियंका कुमारा को मरवाने के बाद, मिसाल खान को मरवाने के बाद अभी भी आपको इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि कितने लोग मरते हैं। और इन्होंने एक और ड्रामेबाजी की, और इन लोगों को माइनॉरिटीज के हकूक याद आ जाते हैं इंडिया में। एक नजर से मेरी एक वीडियो गुजरी जिसमें ये कह रहे थे कि जी हम तो वो लोग हैं जी, हम तो पाकिस्तान में भी अगर किसी माइनॉरिटी के साथ कोई जुल्म होता है तो हम उनके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, इनको फलस्तीन के और इंडिया की माइनॉरिटीज याद आती, इनको अपने मुल्क की नहीं आती। ये मेरी एक प्लेलिस्ट है माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान की, ये भरी पड़ी है। हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियां जो अगवा होती हैं, ये उनसे भरी पड़ी है। ये सारी वीडियोस हैं, इनमें से किसी एक के ऊपर भी फैसल कुरैशी ने कभी बात की? कभी भी नहीं की। ये इनमें अहमदियों की भी बात है और भी लोगों की बात है, लेकिन कभी भी नहीं ये करते। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, ये सिर्फ पता नहीं, या तो इग्नोरेंस है, शायद हो सकता है वो कहें मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो नहीं जानता कि हिंदू लड़कियां अगवा होती हैं, मियां मिट्ठू भी कोई चीज है, मुझे नहीं पता हो। तो फिर आप इग्नोरेंट है, तो आपको इससे पता चलता है कि आप एक फूलिश इंसान है, कि आपको इंडिया में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है, उसकी तो आपको खबर आ जाती है और आपको सेल्फ राइचियस मोड ऑन हो जाता है। लेकिन आपकी अपनी नाक के नीचे आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है, कितने चर्चेस गिराए गए हैं, कितनी अहमदी मस्जिदें गिराई गई हैं, कितने गिरजाघर गिराए गए हैं, आपने कभी उसके ऊपर बात नहीं की। तो ये इन लोगों की मुनाफकत है, और इसके ऊपर बजाय इसके कि ये इनको इस चीज का एहसास हो, ही इज ट्राइंग टू कैश इन ऑन दैट। कैसे? इसी बंदे को जो मैंने भी आपको दिखाया, ये हनीफ कुरैशी, जो कि दुनिया में कहता है हाँ मावरा अदालत की बात नहीं करते, लेकिन अपनी मेंबरों पे, अपनी महफिलों में ये खुल के सरतान से जुदा की तलकीन कर देते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये जनाब इसके बाद में क्या जवाब देते हैं, सुनिए। देना चाहते हैं कि जो लोग इस वक्त फैसल साहब के साथ, फैसल कुरैशी के खिलाफ लगे हुए हैं, इन्हीं को पहचाने, इनका लिंक है उन लोगों के साथ कि जो लोग ये मकरू धंधा और ये जो मुल्क के अंदर ये खराबी का बायस बन रहा है, इनको पहचाने, इनके अकाउंट्स को चेक करें, इनका ताल्लुक निकलेगा उन ब्लास्फेमर्स के साथ कि जो लोग ये कर रहे हैं। वगरना भाई हम चोर को चोर कह रहे हैं, हम गंदे को गंदा कह रहे हैं, इसमें हमने कौन सी गलत बात की है? और चोर को चोर कहने पर अगर कोई शोर कर रहे तो समझ रहे हैं कि जनाब वाले ये भी चोर कर। तो ये देखें कितनी चालाकी से इन्होंने इसको मोड़ने की कोशिश की। ये धंधा इतना क्लेवरली बिकता है, और फिर वही बात आ रही है, ये तो वो आदमी ना जो सरतान से जुदा मुमताज कादरी को सेलिब्रेट करने वाले, ये तो खूनी दरिंदे हैं। फैसल कुरैशी साहब, आपकी इतनी बड़ी कुछ 30-35 साल की शोबिस की आपकी एक तारीख है, आपको ऐसे लोगों से इंडोर्समेंट चाहिए? और देखें उन्होंने किस तरह उसको बदल दिया, कि जिसने ये ट्वीट की, इस तरह की बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स की हैं, यानी इसने रुख मोड़ दिया कि इनको देखो, यानी उसने कोवर्टली तौर पे उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि ये ब्लास्फेमर है, इनके पीछे पड़ जाओ, बजाय इसके कि तुम इनको रोक रहे हो, फैसल कुरैशी को। और फैसल कुरैशी जी, इसमें मैं एक पॉइंट सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था कि ये वाला जो इसने इंडोर्समेंट लिया, एक तो ये इस हिसाब से बिल्कुल फजूल बात है कि अगर इस बात का फैसल कुरैशी को इस बात का एहसास हो गया था कि ये कुछ मसला हो गया, तो बजाय इसके कि इस चीज को किसी और तरीके से इसको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता कि हाँ ये वाली बात मुझसे गलती हो गई, या अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता, उसने मजीद उस व्यू को इंडोर्स कराया कि देखो ये मेरे पीछे खड़े हैं। एक तो ये पॉइंट। दूसरा ये पॉइंट था, ये जो हनीफ कुरैशी ने जो बात की, हारिस आप ये देखें इसने कितनी खतरनाक बात की है। इसने उन मुसलमानों की भी जिंदगियां एट स्टेक लगा दी हैं जिन्होंने अपने टॉलरेंट व्यूज को शो करते हुए फैसल कुरैशी और इस प्रोग्राम की मजम्मत की थी। इस बंदे ये दाढ़ी में जो शैतान छुपा हुआ है हनीफ कुरैशी, इस बंदे ने बेसिकली एक नॉर्मल मुस्लिम, जो कि एक पीस लविंग मुस्लिम जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जिन्होंने फैसल कुरैशी और इस प्रोग्राम को कॉल आउट किया, उनको भी उसी साफ में खड़ा कर दिया, बेसिकली उनका अकम्पलिस बना दिया है कि जिन लोगों ने ये इस तरह का कंटेंट की प्रोड्यूस किया, या जो जिनको ये ब्लास्फेमी कहते हैं। यही तो वर्ल्ड व्यू है जिस पे हम बड़े अरसे से कह रहे हैं इस आग में सब जलेंगे। अभी इंजीनियर मिर्जा साहब के ऊपर भी तो फतवा पाकिस्तान में बैठ के खुल के एक मौलवी ने 5 लाख का इनाम रख दिया उनकी खोपड़ी के ऊपर। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर्चा भी हो, इसकी गिरफ्तारी भी हो और इसको सजाए मौत भी हो। ये शख्स वाजिबुल कत्ल है, उम्मत पर फर्ज है इसको कत्ल करना। हुकूमत इसको कत्ल करे, हुकूमत नहीं कत्ल करती तो कोई गाजी उठे।
तो ये तो डॉग विस्लिंग है, इतने आराम से ये कह देना, किसी के ऊपर इल्जाम लगा। तो होना क्या है, आपका मुआशरा कैसा बनना है? तो वो ऐसा ही बनना है कि सारे जलेंगे, सारे, किसी ने ये, इसने गुस्ताखी कर दी, उसने, और ये मौलवियों के ऊपर भी आएगी बात। इन्होंने अभी बताया इसी में, ये जो पहला वाला जो मौलवी बड़ी छलांगे मार रहा था, जो रो रहा था, चीखें मार रहा था, वो कह रहा था एक इमाम भी गुस्ताखी करता हुआ पकड़ा गया। एक आलिम दीन तौहीन करते हुए पकड़ा गया। तो अब बात करते हैं कि जो इन्होंने क्या बयान दिया कि जब ये सारा ट्विटर पे मामला उठा तो इन्होंने, फैसल कुरैशी साहब ने क्या कहने की कोशिश की। इतनी सारी खवातीन, इतने सारे लोग जो है, अस्सलाम वालेकुम जी, ट्विटर पे बड़ा शोर मचा दिया कुछ लोगों ने, मुझे समझ में नहीं आया वजह क्या हुई, बिकॉज हमने जब डार्क वेब पे प्रोग्राम किया तो इतनी अप्रिसिएशन आई है, इतने सारे फेसबुक पेजेस, इतनी सारी खवातीन, इतने सारे लोग जो है वो अप्रिशिएट कर रहे थे कि हम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात कर रहे थे, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ऐसे बात कर रहे थे कि इनकी शक्लें दिखाएं, इनको एक्सपोज करें, ये खंजीर हैं, यानी डॉग विस्लिंग कर रहे हैं, आप उकसा रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं हम उनको बचाने के लिए कर रहे थे। वाह। और आप यकीन करें जिस चीज़ पे हमने प्रोग्राम किया है उसमें कुरान पाक के साथ जिस तरह ज़्यादती की जा रही है, नाउज़ बिल्ला, जिस तरह जो मुक़द्दस नाम है, जो जिस तरह से वो इस्तेमाल हो रहे हैं डार्क वेब के ऊपर, पहली दफ़ा हमने हिम्मत पकड़ी और हमने बात की, लेकिन जो उसके बरक्स बात आ रही है वो ऐसे आ रही है जैसे हम ब्लेसफेमी के हवाले से बात कर रहे हैं और लोगों को मारने की बात कर रहे हैं। ओ भाई, ब्लेसफेमी जो जिस लेवल पे हमारे प्रोग्राम में डिस्कस हुई है वो तमाम सबूत हमारे पास थे और पाकिस्तान की अदालत ने हमें उसकी इजाज़त दी कि हम उस पर बात कर सकें, तो बात की गई है। और आप मुझे लिख के भेज रहे हैं शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। भाई आप पहले असल मसला तो देखें कि बात क्या हुई है, खुदा के वास्ते क्यों अपने आप को गुनहगार कर रहे हैं? हम तो गुनहगार लोग हैं, नाचने गाने वाले लोग हैं, एक्टर लोग हैं, हम मानते हैं इस बात को, हम मानते हैं इस बात को। ये जो मुनाफिकत है ना, ये वाली मुनाफिकत, एग्जैक्टली, बिकॉज ही वाज कॉल्ड आउट। ये जब कोई लिबरल व्यू वाला बंदा या जिसकी रोजी रोटी, जिसकी सारी जिंदगी जो है वो इस्लाम के मुनाफी कामों पे चली हो, लोग उसको जरूर उसको ज्यादा कॉल आउट करेंगे, क्योंकि मौलवी का तो धंधा ही है ना, मौलवी का तो काम ही है। लेकिन जब इस तरह के लोग जिनकी ये प्रेजेंस, हु इज फैसल कुरैशी को लोग जानते हैं एज एन एक्टर। अब मुझे बताएं, जैसे आपने भी हारिस शुरू में कहा, ये जाके अफगानिस्तान में बनाए ना जाके ड्रामे, इस तरह जिस तरह ये जो नकली बीवियों के साथ जनाब ये सुहागरात वो के सीन शूट हो रहे हैं, ये इस्लाम से मुनाफी चीजें हैं और ये सारी दुनिया जानती है, हम कोई नई बात नहीं कर रहे। तो इस तरह का बंदा जब कॉल आउट किया गया, इसने साथ ही देखें क्या पर्दा लिया है, हम तो गुनाहगार लोग हैं। तो भाई पहले आप जाके खुद अपने गुनाह कम करें ना। आप जो लोगों के खानदानों को दिखा रहे हैं कि जी इनके खानदान भी दिखाए जाएं, क्यों भाई, खानदान का क्या ताल्लुक है उससे? अगर कोई कर भी रहा, अव्वल तो खैर जो कर रहा है, हम तो उसको हमारे वर्ल्ड व्यू में तो वो भी चीज उस तरह नहीं है जिस तरह ये लोग इसका अंजाम पे जिस तरह पहुंचाते हैं। तो ये तो कॉल आउट होना था, लेकिन ये कितना बड़ा कॉप आउट है कि जी हम तो गुनाहगार लोग हैं। नहीं, पहले आप अपने आप को ठीक करें, फिर अगर अदरवाइज ये मुनाफिकत ही मानी जाएगी। लेकिन अफसोस इस बात का है ना स्टोरी भाई कि मुनाफिकत को सेलिब्रेट किया जाता है। इस कल्चर में पता है, वो राबी पीरजादा की नंगी तस्वीरें आ गई, उसने कहा ओहो अब क्या करूं मैं, लोग तो मुझे जीने नहीं देंगे, चलो मैं बुर्का पहन के आ जाती हूँ। लोगों ने तालियां मारनी शुरू कर दी। इनको सारा साल ये 2 नंबरियां करते रहे, जो मर्जी करें, जैसा भी इस्लाम के रूल से, हमारे वर्ल्ड व्यू में कुछ नहीं, आप जो मर्जी करें। इनकी और ये मुझे इसलिए हैरत हुई इनसे क्योंकि अगेन ये मैं कोई गलत इनको कोई टॉन्ट नहीं मार रहा, क्योंकि हमारे वर्ल्ड व्यू के हिसाब से फैसल कुरैशी जैसे मर्जी अपनी जिंदगी गुजारे, लेकिन पाकिस्तान के जो लिबरल जो एक्टर्स जो लिबरल होते हैं वो अपनी बेटियों को भी इस इंडस्ट्री में नहीं आने देते। इनकी बेटी, मैं देख रहा था, अभी रिसर्च कर रहा था, इनकी बेटी जो मेरी छोटी मेरी भी बेटी की जगह पे है वो, और उसको पूरा हक है अपनी जिंदगी जैसे गुजारना चाहे हमारे वर्ल्ड व्यू के हिसाब से, लिबरल वर्ल्ड व्यू के हिसाब से। तो ये लिबरलों के भी लिबरल है पाकिस्तान में, लेकिन ऑन दी अदर हैंड मेरा ख्याल से ये वही काम है कि जब कोई बंदा किसी गुस्ताख को मारता है ना, ये इंजीनियर मिर्जा साहब को मैं कोट कर रहा हूं, वो कहते हैं कि ये अपने पुराने गुनाहों को धो रहे होते हैं। ये इनके जहन में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है कि हमने बड़ी जिंदगी गुनाहगार जिंदगी गुजारी है, ये एक छोटा सा आसान रास्ता है कि रसूल से मोहब्बत का इजहार हम कर दें तो हम बख्शे जाएंगे। क्योंकि बाकी चीजों में तो 5 वक्त की नमाजें पढ़ना और ये अपनी सारी जो टेम्पटेशंस हैं लाइफ की, इनको फेंक देना, ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना। वो तो यार क्या है, वो तो चलता रहेगा ना। लेकिन अब अपनी बख्शिश किस तरह करवाएं?
اور یہ इसीलिए लोग हज पे भी चले जाते हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये इसलिए भी चले जाते हैं. तो ये सारी कश्मकश इनके जहन में चलती रहती है बिकॉज दिस आइडियोलॉजी, ये इट सक्स जॉय आउट ऑफ लाइफ. ये दीन फितरत नहीं है, दीन गैर फितरत है. ये लोगों को उन चीजों पे मजबूर करता है जो कि नहीं हो सकती, स्पेशली 21वीं सदी में. और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? ये कॉन्फ्लिक्ट निकलता है दिमाग में. यही वजह है कि जब जुनैद जमशेद वो कहते हैं मैंने दीनी होना, मैंने अपने आप को बख्शना, तो वो म्यूजिक को छोड़ के कहते हैं ये काम करते हैं. वो फिर आशिकाने रसूल या इस्लाम की प्रचार की बात करते हैं. हमजा अली अब्बासी ने अगर कहा तो उन्होंने कहा मैं छोड़ने लगा अपनी शोबिस, मैं इस्लाम के ऊपर अपनी वक्फ करने लगा, बट ही इज यंग एंड हैंडसम, सो ऑब्वियसली मे बी दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम एज वेल. तो उन्होंने कहा चलो अब जरा इस्लाम को 5-6 साल के लिए होल्ड पे रख देते हैं, लेट्स गो बैक. तो ये क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है. लेकिन ये जो दोनों कश्ती पे सवार होते हैं ना जिस तरह के लोग, फैसल कुरैशी साहब, आई एम सॉरी टू से फैसल भाई, आप सिर्फ आप मुनाफिकत की एक छवि है. अब आ जाते हैं इनके गुस्ताखियों के ऊपर, जो इन्होंने फिर इसको बताया कि नहीं ये जिस लेवल की गुस्ताखी हो रही है. अच्छा, अगर फर्स्ट करो छोटे लेवल की गुस्ताखी हो रही होती, हजरत मोहम्मद की ने छोटी बच्ची के साथ शादी की, भाई हम तो इसको छी बड़ा बुरा समझते हैं, जो कि ये आपका हनीफ कुरैशी कह रहा था, तनकीद भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी सजाए मौत है. और अगर इनके अपने बस में हो, जो ये मेंबरों में कहते हैं, अपने मस्जिद के मेंबरों में कहते हैं कि उड़ा दो, सरतन से जुदा कर दो, मुमताज कादरी हीरो है हमारा, तो छोटी सी तनकीद के ऊपर भी. तो ये अब आप ये कवर ना लेके गुस्ताखी एक बहुत बड़े लेवल की हो रही थी, अब आ जाते हैं कि उस लेवल की भी क्यों हो रही है. मैं पाकिस्तान का मुल्हिद हूं, मैंने सबसे पहले इन इश्यूज के ऊपर बात करने की कोशिश की. पिछले 5 सालों से मैं कह रहा हूं कि ये आ रही है, एक गुस्से वाली पौध आ रही है, जो आपके साथ मेरी हमजा अब्बासी को 3-4 साल पहले बात हुई थी, हमजा ने भी इसको एक्नॉलेज किया था कि जो जनरेशन आएगी अगली वो गुस्से वाली होगी. क्यों होगी गुस्से वाली? 21वीं सदी में रहते हैं आप, उनको डंडे मार के नमाजें पढ़ाते हैं, उनके सामने अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह प्यारी प्यारी अल्लाह मियां की बातें करते हैं, जो कि उनकी अकल के खिलाफ है, वो किसी भी रैशनल बंदे की अकल के खिलाफ है, जिसने साइंस पढ़ी उसकी अकल के खिलाफ है. आप उनको रोजों में पूरा रमजान का महीना उनके लिए नहूसत का महीना बन जाता है कि सारी कैंटीनें वगैरह हर चीज बंद होती है. तो उन्होंने बागी होना, उन्होंने आपको गालियां देनी. मगरिब में कोई एक्स क्रिश्चियन हो जाए उसको कोई कुछ नहीं कहता, मगरिब में कोई कह दे हम नहीं चर्च जाते उसको कोई कुछ नहीं कहता. इसलिए वहां पे जीसस के खिलाफ एक वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ उस तरह का गुस्सा नहीं है जैसा गुस्सा आपके इस्लामी मुल्कों में आ रहा है. और पाकिस्तान में अभी हमने 4 लाख की बात की है कि 4 लाख लोग, हालांकि मेरे लिए भी बड़ी हैरानकुन बात थी कि 4 लाख अकाउंट FIA ने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि गालियां दे रहे हैं बदतरीन किस्म की. तो इसका मतलब उनके अंदर गुस्सा है. मैं तो कभी गाली गलौज से बात नहीं करता, और बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं हम लोग गाली गलौज, क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा नहीं है. हमारी ये एक इंटेलेक्चुअल जर्नी है, एक एक्टिविज्म है, इसमें गुस्सा नहीं है. लेकिन जो बच्चे आपकी नाक के नीचे जुल्म के नीचे रह रहे हैं उनमें गुस्सा है, इसलिए वो ये इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं. और आपके पास सोल्यूशन क्या है कि उनको नंगा करो जमीन पे, उनको दिखाओ, उनको मारो, उनको फांसियां दो सड़कों पे, उनकी शक्लें दिखाओ, उनके खानदानों को जलील करो, ये आपका सोल्यूशन है. तो ये 4 लाख जो है ना, ये 40 लाख अगले 5 सालों के अंदर बनेगा, और इसका आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है. इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, अपने मजहब को अपनी जात तक रखें. ये जो आप लोगों का जो शो ऑफ पावर का जो शौक है ना, कि टाइम स्क्वायर में, लंदन में बकिंगम पैलेस के सामने नमाजें पढ़नी है, ये जो ड्रामेबाजी, अपनी शो ऑफ फोर्स दिखाने का जो शौक है आपको, लोगों के सामने जाके चीखें मार मार के अजाने देने का जो आपको शौक है, और अपने मुल्कों में जो ये शौक है कि ये जो ऑस्टेंशियस डिस्प्ले ऑफ रिलीजियोसिटी एंड पायरिटी है, ये जब तक आप करते रहेंगे ना, तब तक आपकी अगली जनरेशन, ये वो 1400 साल पुराने वाले जमाने नहीं रहे कि आपने गर्दन के ऊपर तलवार रखी तो अगला जी हाँ जी या तो मुसलमान बन जाओ या जजिया दो या फिर गर्दन उड़ा दो, तो लोग कहते थे हाँ जी हम मुसलमान बन जाते हैं. ये वो जमाना नहीं रहा. आपकी अपने ईरान में तो पाकिस्तान से भी ज्यादा सख्ती है. वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर औरतें अपने हिजाब जला रही हैं. अब वीडियोस आ रही हैं कि उनके शुरतों के सामने औरतें विदाउट हिजाब चल रही हैं एज ए डिफाइंस, और वो डरे में है कि अगर उन्होंने फिर से किया तो मासा अमीनी हो जाएगी, फिर से दोबारा से दंगे शुरू हो जाएंगे और अब की बार वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे. ईरान जैसे मुल्क में जहां पे इतनी सख्ती से इस्लाम गलों के नीचे, हलक के नीचे उतारा जाता है, पाकिस्तान में इस सॉफ्ट तरीके से हलकों के नीचे से उतारा जाता, तो ये काम अब चल नहीं सकता. तारीख भरी पड़ी है, कभी भी कोई नजरिया धौंस से, ताकत से, डर से कभी भी नहीं दबाया जा सका. और तारीख अफसोस से इस बात से भी भरी पड़ी है कि जितने लोगों के पास ताकत होती है वो कभी इस बात को नहीं समझे कि हम ताकत से, धौंस से लोगों को नहीं दबा सकते. और यही काम आपके साथ हो रहा है. तो फैसल भाई, आप एक लिबरल आदमी है, आप एक लिबरल वर्ल्ड व्यू के बेनिफिशियरी हैं.
تو یہ منافقت چھوڑ دیں. ٹھیک ہے پاکستان میں آپ لبرلزم کا پرچار نہیں کر سکتے, سٹلی طور پہ رہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن کم سے کم ان کے ساتھ تو نہ بیٹھے. کم سے کم یہ جو حنیف قریشی ہے, اس طرح کے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, جو کہتے ہیں سرطان سے جدا ماورائے عدالت کر دو, ان کے ساتھ تو نہ بیٹھے. اگر آپ نے اپنے آپ کو منسلک کرنا ہی ہے کسی دینی شخصیت کے ساتھ, تو کوئی بڑے ڈیسنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گاندھی صاحب کے ساتھ ان کو بٹھا لیں, انجینئر مرزا صاحب کو بٹھا لیں, اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. آپ یہ خونی پیاسے جو ڈرامے باز لوگ جو چیخ چیخ کے, یہ سارے مگرمچھ کے آنسو ہیں. مگرمچھ کے آنسو ہی ہیں حارث. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چیز بھی یہ جو ان کا جو محبت جاگتی ہے نا, عشق رسول جو ان کا جاگتا ہے, انجینئر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جان بھی قربان ہے, میری نہیں تیری. یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے نا اس کے آس پاس, فیصل قریشی کے جتنے مولوی ہیں, اگر ان کی عشق رسول اتنا ہی سچا ہے, انہوں نے خود کبھی کچھ کام کیا ہے یا انہوں نے خود کبھی اپنے بچوں سے وہ کوئی ایسے کام کرائیں؟ یہ ہمیشہ جو ہے وہ عوام کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ قانون میں ہاتھ لے رہے, اور یہ ڈاگ وسلنگ کی بہترین مثالیں ہیں یہ لوگ. تو باقی آپ نے آئی تھنک مکمل بات کر ہی دی. اب منافقت جو اس کلچر کے اندر ہے رچ کے بسی ہوئی ہے. ہوش کے ناخن لیں. مجھے ابھی ایک میسج آیا ایک مسلمان لڑکے سے, میں اس کو بڑی تعریف کرتا تھا اس بچے کی, اور یہ بڑا پاکستان کو بھی ڈیفینڈ کرتا تھا, اسلام کو بھی ڈیفینڈ کرتا تھا, ابھی بھی وہ مسلمان ہی ہے, لیکن اس نے مجھے بڑا یہ ڈپریسنگ سا میسج بھیجا. میں یہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. ابھی دیکھ لیں, ابھی اس وقت ہمارے یہاں پہ 1:30 بجے ہیں, یہ بھی 2 گھنٹے پہلے ہی میسج آیا تھا کہ ہاؤ ڈو یو لیو پاکستان, آپ پاکستان کو کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں, یہ بڑا ڈینجرس رستے پہ چل پڑا پاکستان. میں نے آج بڑے عرصے بعد یوٹیوب کو کھولا اور میں نے دیکھا کہ یہ جتنے انفلوئنسرز ہیں, سو کالڈ انفلوئنسرز, اگین لبرل ورلڈ ویو کے جو بینیفیشری ہیں, یہ ایجوکیشنل کنٹینٹ بنا رہے ہیں, یہ لوگوں کو لیسنز دے رہے ہیں, اور ان کا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں لمبی چوڑی, اور ان کی کوئی انفارمیشن, اسپریڈنگ رانگ انفارمیشن. سب سے اوپر جو اس کی سب سے ٹاپ کی مثال ہے وہ جیسے حقیقت ٹی وی ہے, جو کہتا ہے دنیا تباہ ہونے والی, لائک شیئر کریں میرے چینل کو. اس طرح کے لوگ آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے بھی پہلے شیئر کیا تھا کہ بہت سارے لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کو, اور اس کے اندر میری بھی ایک ٹویٹ تھی جس کے اندر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ لوگ اس کو شیئر کر رہے تھے کہ یہ ملک ایک طرف مر رہا ہے, ڈوب رہا ہے, اور دوسری طرف ان سے یہ اس چکر میں پڑے ہوئے کہ کس طرح ہم گستاخوں کو مارے. تو یہ آپ بہت سارے مسلمان لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے یہ اس ملک میں اب رہنا نہیں ہے, اب اس ملک میں نہیں رہ سکتے, یہاں سے ہمیں اس ملک سے بھاگنا ہی پڑے گا. جو یہ لبرل مسلمان ہے, ایتھیسٹ نہیں ہیں یہ لوگ, یہ لبرل مسلمان ہے. لیکن یہ جو سسٹم ہے ہر طریقے سے فیل ہو چکا ہے, اکانومی کے لحاظ سے, گڈ گورننس کے حساب سے, آپ کا جو سوشل فیبرک ہے وہ بھی ہر لحاظ سے پیچھے رہ گئے. کوئی ایک انڈیکیٹر ایسا نہیں جہاں پہ آپ بہتر کام کر رہے ہیں, اور لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ وہی غلطیاں دوبارہ دہرائی جا رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ شاید there might be light at the end of the tunnel, but مجھے تو ویسے نظر نہیں آتا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.